A very good morning to all students. In the last video of class 11th accountancy, we discussed a new topic of class 11th accountancy, that is a ledger. You know, ledger is a principal book which contain all the accounts to which the transaction are recorded in the books of original entry are transferred, and ledger may be kept in the form of bound register or cards and punched sheets. So in the ledger, each account is opened generally on the separate page or card or sheets which contain a classified and permanent record of all the transaction of a business. You know, there are various benefits of the ledger which are already discussed in the previous video, that is the utility of a ledger. As well as we already discussed a format of ledger account. In the format of ledger account, we know very well there is two-sided of the ledger account, the debit side and credit side. In the debit side there is a 4 column, as well as in the credit side also I have a 4 column. In the first column date, second is a particular, third one is a general FORE, and fourth is amount. As well as in the credit column, the first column is date, second is a particular, third is a general FORE, and fourth one is amount. So now we will move to the understand the process of posting the entries, how we will post the account from the journal to the ledger, yani how we will post the entries from the journal to the ledger, because posting is the process of classifying the transaction accounts wise and recording them in the ledger form, the journal or subsidiary book. So first of all, we take the few example which are already expressed in your screen, already shown on your screen. There is a 3 important journal entry given in your screen. The first journal entry, you can easily see that the date, particular, LF, amount debit and card credit. The first journal entry, you can easily see that the 2015 May 5th, the first entry is cash account debit to sales. Narration is being sale of goods for cash, white cash memo, and the amount is 500 and 500. And for May 8, the second entry will be Saru account debit to cash account to discount received. The amount will be 510, 510. And then for May 10, purchase account debit to Gobind, being the goods purchased from Gobind on credit, the amount will be 700 and 700. So there's a basically 3 entries. So how we will post the account from the journal to the ledger, let's we discuss this. So you know very well, in this question you can easily read there's a basically cash, open cash account, sales account, Saru's account, cash account, discount received account, purchase account, and Gobind account. So basically in this question you can see that in this question you can see that the cash account is open, sales account is open, Saru account debit, it means Saru's account is already open, discount received account is open, and a purchase account is open, and also the Gobind account. So in this question you can easily say that there are basically 5 accounts are open: cash account, sales account, Saru account, discount account, purchase account, and Gobind account. You know, there is a 2 account open repetitively, that is cash account. So when we prepare that ledger account, जब भी हम ledger account prepare करेंगे, तो one more thing is very important for you is that कि अगर एक बार कैश अकाउंट ओपन हो चुका है फिर दोबारा हम लोग कैश अकाउंट ओपन नहीं करेंगे, यानी इफ एनी अकाउंट इज ओपन ऑलरेडी, सो अगेन वी कैन नॉट बी प्रिपेयर द कैश अकाउंट अगेन और एनी अदर अकाउंट. यानी अगर परचेस अकाउंट 2-3 बार एंट्री हो गई है तो ऐसा नहीं है कि हम परचेस अकाउंट को 2-3 बार ओपन करेंगे. वी मेक और प्रिपेयर ऑफ एनी पर्टिकुलर अकाउंट एट वन टाइम. ओके, सो विद द हेल्प ऑफ द above information, now we will move to the ledger account. So you know very well, in this illustration I will explain to you how we will prepare the ledger account from the help of the journal. So in this situation we find that there are basically 5 accounts are open: the cash account, sales account, Saru account, discount received account, and purchase account, and Gobind account. So now first of all we prepared a ledger account of the cash. So you can see that the first account is open in this, that is a cash account. So in the cash account, the first entry you can easily see that the cash account debit to sales. So in this cash account debit to sales you can easily see that कि कैश अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट में यू कैन सी कि कैश डेबिट हुआ है, तो कैश अकाउंट के डेबिट में जाकर हम लोग टू सेल्स को राइट डाउन करेंगे एंड अमाउंट विल बी 500.
एंड अगेन वी कैन सी दैट द कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है. सो जब कैश अकाउंट क्रेडिट होता है, यू नो वेरी वेल कि कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएंगे और अपोजिट में लिखेंगे बाई सारूज एंड अमाउंट विल बी in front of the cash. कैश के फ्रंट में कितना अमाउंट है? 500. So write down the 500. So you can easily see that in the example. Can see that the ledger account, first of all we prepare the cash account ledger account and the format date particular general folio rupees, date particular general folio in rupees. So now we write down the amount, write down the date of the transaction. So the first transaction are related to the date May 5th 2015 and write down here. And first of all you can see that sales कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे एंड राइट आउट टू सेल्स अकाउंट. ओके, एंड अमाउंट विल बी 500. अगेन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दी अगेन ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू द कैश अकाउंट. सो कैश क्रेडिट हुआ है, तो यू कैन सी दैट कैश अकाउंट क्रेडिट है. सो इन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश अकाउंट वी पोस्ट द अमाउंट दैट इज़ अ शारूज डेबिट, बिकॉज यू नो वेरी वेल कि कैश क्रेडिट हुआ है तो कैश के क्रेडिट में जाकर लिखेंगे बाई सारू, by Saru, and amount will be 500 and date of the transaction will be same as well given in the question. So when we are talking about the cash account, in this transaction we can see that कि कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है वो कई बार हुए हैं. सो आपको उसको लेकर ज़्यादा ट्रबल नहीं करना है, एक ही बार किसी के लेज़र अकाउंट को ओपन करना है और उसमें सारी एंट्रीज को पोस्ट कर देना है. Okay, now we will move to the sales account. You can see that in the sales account is credited. So when we prepare this ledger account of the sales, so first of all we write down the sales account and and prepare the ledger format of the ledger format of the sales account, and format is date particular general folio rupees, date particular general folio in rupees, and write down the amount that is a cash is credited and discount received is credited and SARU is debited. But in this question we prepare to sales account, but sales account is credited, so we post the amount of the sales in credit side of the cash account. So we find that कि sales account credit हुआ है, so we write down the cash account in the credit side of the sales account and amount will be 500 and date will be 2015 May 5th. सो बेसिकली आपको पोस्टिंग करते समय ये ध्यान रखनी है, द फर्स्ट वन इज़ कि जिसका लेज़र अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं वो पर्टिकुलर लेज़र अकाउंट डेबिट हुआ है कि क्रेडिट हुआ है. अगर क्रेडिट हुआ है तो उस अकाउंट के पर्टिकुलर अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएंगे, लेज़र अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएंगे एंड वी राइट डाउन दी नेम ऑफ द अकाउंट विच आर अराइज इन द अपोजिट डायरेक्शन, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में अराइज हो. ये बात ध्यान रखना है हमें. जैसे कि आप देख रहे थे कि सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में गए, बट वहाँ सेल्स अकाउंट का नाम ना लिखकर बल्कि उसके अपोजिट में जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है, जो भी अकाउंट ओपन किया गया लाइक कैश, तो उसको हमने ओपन किया गया. और अमाउंट जो है हमेशा उस पर्टिकुलर अकाउंट के सामने का अमाउंट लिखा जाएगा. मैक्सिमम केसेस में अमाउंट सेम होती है, बट इन कंपाउंड एंट्री के केस में, कंबाइंड एंट्री केस में जहाँ वेयर टू और मोर देन टू अकाउंट्स और डेबिटेड और क्रेडिटेड होते हैं, तो उन सिचुएशन में हमें अमाउंट को लेके कन्फ्यूज़न होती है. जैसे अब आप सारू अकाउंट को देखिए, इफ़ यू टॉकिंग अबाउट दिस अकाउंट, यू कैन सी दैट इन द सारू अकाउंट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सारू अकाउंट, सो यू कैन सी दैट सारू अकाउंट डेबिट हुआ है, तो सारू अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग क्या लिखेंगे? टोटल अकाउंट क्रेडिटेड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द सारू अकाउंट. तो सारू अकाउंट में हम लोग जाएंगे और डेबिट साइड में फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट डाउन दी डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन एंड राइट डाउन दी टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव 510. सो द टोटल अमाउंट ऑफ द सारू, यानी जो सारू का जो टोटल अमाउंट है वो 510 आ रहा है. वहाँ पे डेबिट भी सारू जो हुआ है वो 510 से ही डेबिट हुआ है. ओके, सो आई होप इट इज़ वेरी क्लियर अबाउट यू फॉर यू. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, हमने सारे अकाउंट प्रिपेयर कर लिया अभी तक. कैश अकाउंट प्रिपेयर कर लिया, सेल्स अकाउंट प्रिपेयर कर लिया, सारू अकाउंट प्रिपेयर कर लिया एंड डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट. जब हम डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट बनाएंगे तो देखिएगा उसमें अमाउंट हमें कितना शो कराना होगा, 10 रुपीज़. बट डिस्काउंट रिसीव्ड के क्रेडिट है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड के अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएंगे और अपोजिट में क्या लिखेंगे? सारू. तो सारू में डिस्काउंट रिसीव के देखिए अपोजिट में सारू लिखेंगे एंड अमाउंट किसके सामने का लिखेंगे? अमाउंट ऑलवेज रिटन which are
रिटेन ऑन द इन फ्रंट ऑफ द पर्टिकुलर अकाउंट। जैसे डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट के सामने अमाउंट कितनी थी, 10 रुपये, अमाउंट ऑफ ₹10, सो इट विल बी रिटेन डाउन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। सो नाउ वी विल मूव टू द परचेज अकाउंट। यू नो वेर विल परचेज अकाउंट, तो परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है एंड परचेज अकाउंट के अपोजिट में क्या है, गोविंद, तो गोविंद को जाकर परचेज अकाउंट के डेबिट में राइट डाउन कर देंगे। तो यू कैन सी दैट इन द परचेज अकाउंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट डाउन दी डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन, देयर आफ्टर वी राइट डाउन दी particulars to Govind and 700 rupees. Okay, so it is very common and very important point for you. The when we talking about the purchase account, तो purchase account में first of all we write down the date and particulars. particulars में हम लोगों ने क्या लिखा, परचेज अकाउंट डेबिट हुआ था तो परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में गए और डेबिट कॉलम में जाकर हम लोगों ने उसके अपोजिट अकाउंट में जो भी ओपन था उसको जाके राइट डाउन कर दिया। अमाउंट किसके सामने करेगी, परचेज अकाउंट के सामने। एंड when we are talking about the गोविंद अकाउंट, you can see that गोविंद अकाउंट इज क्रेडिटेड, और गोविंद अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएंगे और अमाउंट कौन सा लिखेंगे, 700, और अकाउंट का नाम क्या लिखेंगे, बाई परचेज अकाउंट, क्योंकि उसके अपोजिट में किसका नाम दिया हुआ है, परचेज, यानी डेबिट का अपोजिट क्रेडिट और क्रेडिट का अपोजिट। सो जब हम लोग यहाँ पर गोविंद अकाउंट बनाएंगे, यहाँ पे मैंने इसलिए गोविंद अकाउंट की स्क्रीनशॉट नहीं ली क्योंकि आपको खुद से बनाने की कोशिश करनी चाहिए गोविंद अकाउंट को। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द गोविंद अकाउंट, फॉर्मेट इज सेम एज दिस थिंग्स। तो डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो अमाउंट। सो यू नो वेरी वेल, एंट्री विल बी परचेज अकाउंट डेबिट टू गोविंद, गोविंद क्रेडिट हुआ था तो गोविंद के क्रेडिट में लिखेंगे बाई परचेज, अमाउंट विल बी 700। ओके, एंड डेट जो भी डेट होगी वो राइट डाउन करेंगे। सो with the help of this journal entry, we make a different types of the account. In this with the help of this illustration, first of all we understand the concept, how we'll prepare the ledger account, how we'll prepare the different types of the ledger account. First of all we pass the journal entry। सबसे पहले हम लोग journal entry पास करेंगे। journal entry में जो different journal entries हैं which are given in your क्वेश्चन, तो उसके हेल्प के से फर्स्ट ऑफ ऑल वी आइडेंटिफाई कि विच टाइप्स ऑफ अकाउंट आर ओपन इन द लेजर, यानी किस तरह के अकाउंट हम लोग लेजर में ओपन करेंगे, जैसे कैश अकाउंट, सेल्स अकाउंट, सारू अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, परचेज अकाउंट एंड गोविंद अकाउंट। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर यू इज डैट कि कोई भी अकाउंट एक ही बार ओपन होगा, एक से ज़्यादा बार अकाउंट ओपन नहीं होगा। जैसे कि कैश अकाउंट से कई सारे ट्रांजेक्शन यहाँ देखने को मिले हैं, कैश के अकाउंट्स ट्रांजेक्शन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ऐसा नहीं कि वो लेजर अकाउंट बार बार खुलेगा। एनी अकाउंट ओपन फॉर वन टाइम ओनली एंड ऑल द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू द पर्टिकुलर अकाउंट विल बी रिकॉर्डेड इन द सिंगल अकाउंट। तभी तो उसका नाम है क्लासिफिकेशन, क्योंकि हम कैश से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन है उसे हम कैश अकाउंट में इंक्लूड कर रहे हैं, डिस्काउंट रिसीव से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन उसे डिस्काउंट रिसीव कॉलम में इंक्लूड कर रहे हैं। सो ऑल द ट्रांजेक्शन विच आर बेसिकली रिलेटेड टू द पर्टिकुलर अकाउंट आर रिकॉर्डेड इन द पर्टिकुलर लेजर अकाउंट। सो ये तो पॉइंट क्लियर हो गया कि हाउ विल प्रिपेयर द लेजर अकाउंट of a account which are opened, which are already open in the journal. Now we will move to the next topic, that is balancing of an account. After posting in the ledger, the next step is to determine the net effect of all transactions posted in an account. The process of determining the difference between the total of debit and total of credit appearing in the account, it terms as the balancing of account. You know very well when we are talking about the cash book, जब हम कैश बुक बनाते थे, परचेस बुक बनाते थे, सेल्स बुक बनाते थे, तो यू नो वेरी वेल हम कैश बुक को बैलेंस करते थे। वी फाइंड द बैलेंस बिटवीन द कैश बुक, कि कैश कॉलम में कितना बैलेंस आ रहा है एंड बैंक बैलेंस में कितना। सेम एज इट इज़ आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ द पर्टिकुलर लेजर अकाउंट वी फाइंड आउट द बैलेंसेज ऑफ द पर्टिकुलर अकाउंट और उसको फिर हम बैलेंस भी करते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी टेक दिस एग्जाम्पल, सो इन द फर्स्ट लेजर अकाउंट दैट इज़ अ कैश अकाउंट। सो फर्स्ट लेजर अकाउंट में यू कैन सी डैट कि डेबिट में 500 रुपीज़ है और क्रेडिट में भी 500 रुपीज़ है एंड देयर इज़ अ नो बैलेंस ऑफ कैश। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सेल्स अकाउंट यू सी डैट क्रेडिट में 500 है बट डेबिट में कोई वैल्यू नहीं है, तो डेबिट में आपको उसको बैलेंस करना पड़ेगा एंड बैलेंस को राइट डाउन करना पड़ेगा टू बैलेंस CD। ये चीज़ पहले भी आपको कैश बुक में समझाई जा चुकी है। सो माइंड इट, वैसे ही बैलेंस करना है जैसे आप कैश बुक में करते थे। एज वेल एज फॉर द परचेज अकाउंट डेबिट में 700 आ रहा है, क्रेडिट में कोई वैल्यू नहीं है, तो यू नो डैट
we write down the buy balance CD. Amount will be 700. Date is the at the end of the month. अगर आप मंथली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो तो एट द एंड ऑफ द मंथ, अगर आप ईयरली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो तो एट द एंड ऑफ द ईयर. सो जिस भी क्राइटेरिया पे आप ट्रेड को ट्रांजेक्शन कर रहे हो, जैसे इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो 3 जनवरीज हैं विच आर बेसिकली रिलेटेड टू द मई. सो मई का एंड हम लोग लेंगे मई. ओके, सो मई का जो एंड है उस डेट पे हम लोग बैलेंस करेंगे. और ये सारी चीज़ें आपको पहले ही बताई गई. परचेज अकाउंट में डिस्काउंट रिसीव में आप देखो क्रेडिट में कितनी वैल्यू है 10 रुपीज़, डेबिट में कोई वैल्यू नहीं है तो डेबिट में उसको बैलेंस करना पड़ेगा टू बैलेंस CD. यानी बेसिकली हमें ये सीखने की ज़रूरत है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट दी टोटल ऑफ द डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट. यानी डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल काउंट आउट करेंगे कि डेबिट में कितना टोटल आ रहा है, क्रेडिट में कितना टोटल आ रहा है, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम बैलेंस करेंगे कि कितना अमाउंट किधर ज़्यादा आ रहा है और किधर कितना अमाउंट कम आ रहा है. सो बेसिकली फंडा यही है कि आप दोनों साइड डेबिट एंड क्रेडिट की वैल्यू को सेपरेटली ऐड करो और ऐड करने के बाद फाइंड आउट द बैलेंस बिटवीन दैम. जैसे इसमें एक एग्जांपल दिया है. फॉर एग्जांपल, if the total of credit side is 60,000 and the debit side is 50,000, so the difference is 10,000 is written as balance CD on the debit side. It means the account has a credit balance of 10,000. यानी आप जैसे इस क्वेश्चन में कहा गया कि कोई अकाउंट आपने लिया जिस अकाउंट का क्रेडिट टोटल जो है वो 60,000 है और डेबिट का टोटल है 50,000. सो क्रेडिट की वैल्यू ज़्यादा है, यानी आंसर जो भी आएगा वो क्रेडिट आंसर आएगा, क्रेडिट बैलेंस, उसे हम लोग बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस. और कितना बैलेंस आ रहा है 10,000, यानी क्रेडिट की वैल्यू 10,000 रुपीज़ से ज़्यादा है. सो इट मीन्स द बैलेंस इज 10,000 विच इज़ ऑल्सो नोन एज अ क्रेडिट बैलेंस. ऑन द अदर हैंड, इफ द डेबिट साइड इज 80,000 एंड डेट ऑफ द क्रेडिट साइड इज 60,000, द डिफरेंस इज 20,000. राइट ऑन द बैलेंस CD ऑन द क्रेडिट साइड, इट मीन्स द अकाउंट हैज़ अ डेबिट बैलेंस ऑफ रुपीज़ 20,000. यानी कि क्रेडिट बैलेंस कब होता है जब क्रेडिट की वैल्यू ज़्यादा होती है क्रेडिट साइड की, और डेबिट बैलेंस कब होता है जब डेबिट की वैल्यू ज़्यादा होती है. और जितनी ज़्यादा होती है उसे उस साइड जाकर पोस्ट कर देते हैं. जैसे यहाँ पे डेबिट की वैल्यू क्या थी, फर्स्ट सिचुएशन में क्रेडिट की वैल्यू ज़्यादा थी 60,000 और डेबिट की वैल्यू कितनी थी 50,000. तो डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू बैलेंस CD 10,000 और उसे हम लोग क्या बोलेंगे 10,000 रुपीज़ क्रेडिट बैलेंस. क्रेडिट बैलेंस शोज इट मीन्स द क्रेडिट साइड ऑफ द amount is greater than the debit side of the account. And when we are talking about the opposite situation, when debit balance total of the debit column is rupees 80,000 and credit column is 60,000. so credit में कितनी वैल्यू कम है 20,000, तो हम क्रेडिट में जाके लिखेंगे बाई बैलेंस CD. ओके 20,000 और हम उसको क्या बोलेंगे डेबिट बैलेंस ऑफ रुपीज़ 20,000. उस अकाउंट का बैलेंस क्या है 20,000. यानी जिस अकाउंट का जो साइड ज़्यादा होगा उसे हम उस बैलेंस के नाम से कॉल करेंगे. इट मीन्स डेबिट की वैल्यू ज़्यादा है तो डेबिट बैलेंस और क्रेडिट की वैल्यू ज़्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस. सो डेबिट बैलेंस इज देन राइट ऑन द डेबिट साइड एज द टू बैलेंस ब्रॉट डाउन and to balance BD, which is the opening balance of the new period. Credit balance is written on the credit side of the balance brought down and by balance BD, that is the opening balance of the new period. कि हमने कैश बुक में डिस्कस किया था कि कैश बुक का जो भी क्लोजिंग बैलेंस होता था, सपोज हमने कैश बुक प्रिपेयर किया, कोई भी पर्टिकुलर अकाउंट प्रिपेयर किया, तो उस अकाउंट का जो भी सपोज इधर कोई बैलेंस आता है बाई बैलेंस CD, इट मीन्स अ डेबिट बैलेंस, तो उसे हम नेक्स्ट मंथ के नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग रूप में बाई टू बैलेंस BD के रूप में प्रेजेंट करते हैं. यानी किसी भी ईयर किसी भी मंथ का पर्टिकुलर का जो क्लोजिंग बैलेंस है बाई बैलेंस BD बाई बैलेंस CD विल रिप्रेजेंट दी टू बैलेंस BD एज अ ओपनिंग बैलेंस. ओके, सो द प्रोसेस एंड प्रोसीजर ऑफ द बैलेंसिंग लेजर अकाउंट, इसको मैंने थोड़ा सा और इजी वे में आपके सामने प्रेजेंट किया है. हाउ वी विल कैलकुलेट द असर्टेन टोटल द बोथ डेबिट अमाउंट कॉलम एंड क्रेडिट अमाउंट कॉलम सेपरेटली. यानी फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो भी अमाउंट की कॉलम है डेबिट की और क्रेडिट की उसे सेपरेटली ऐड करो, सेपरेटली कैलकुलेट करो, एंड देयर आफ्टर इफ़ द टोटल डेबिट साइड टोटल एक्सीड क्रेडिट साइड टोटल, पुट सच डिफरेंस ऑन द क्रेडिट साइड इन क्रेडिट अमाउंट कॉलम एज बाई बैलेंस CD. यानी डेबिट साइड ज़्यादा है, जैसे डेबिट साइड है आपका 60,000 और क्रेडिट साइड है 40,000, तो क्रेडिट साइड में जाकर लिखो 20,000, जितना भी डिफरेंस आ रहा है उसे किस नाम से लिखो बाई बैलेंस CD. If credit side total is more than the debit side total, यानी क्रेडिट साइड जो है टोटल का वो ज़्यादा है, इट मीन्स आपका क्रेडिट साइड है 60,000 और डेबिट साइड है 40,000. सो आप डेबिट में जाकर लिखो 20,000 टू बैलेंस CD.
अपोजिट क्या होगा, जिस साइड आप बैलेंस लिखोगे उस साइड के अपोजिट, जैसे आप डेबिट में बैलेंस लिख रहे हो तो उसको क्या बोलोगे, क्रेडिट बैलेंस। मेक द टोटल ऑफ डेबिट साइड इक्वल टू द total of the credit side, draw a double line run through the total, bring forward the balance on the next date। मीन्स अगर दोनों साइड बराबर आ रहा है तो कोई मतलब ही नहीं, उसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं। जैसे हमने आपको एक एग्जांपल के थ्रू में बताया था, कैश का डेबिट भी 500 आता है, क्रेडिट भी 500, उसको टोटल करके छोड़ देना, उसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। वंस अगेन आई रिपीटेड इट, अगर दोनों अमाउंट साइड, दोनों डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों का अमाउंट का कॉलम इक्वल आता है, बराबर आता है, तो उस सिचुएशन में, इन दिस सिचुएशन हमें बैलेंस नहीं करना है। बैलेंस तभी करना है जब डेबिट साइड अमाउंट का टोटल और क्रेडिट साइड अमाउंट का टोटल में कोई डिफ्रेंशिएशन आता है, सो सिचुएशन में उसे हम ऐड करते हैं। रही बात कि सपोज़ हमने कोई वैल्यू बाई बैलेंस बी डी है, टू बैलेंस सी डी है। बाई बैलेंस बी सी डी का मतलब क्या है, डेबिट बैलेंस है, और टू बैलेंस सी डी का मतलब है क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि बाई हम तब किस साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखे होंगे, और टू बैलेंस बी डी किस साइड लिखे होंगे, डेबिट कॉलम में लिखे होंगे। तो जब उसको पोस्ट करेंगे इन द नेक्स्ट ईयर एज अ ओपनिंग बैलेंस, सो वी राइट डाउन दी सेम साइड। इट मीन्स जैसे हम उसको डेबिट बैलेंस बोल रहे थे, तो डेबिट में जाके लिखेंगे टू बैलेंस बी डी, एंड क्रेडिट में क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस बी डी। सो इसको हम पहले से आपको थोड़ा सा एक इलस्ट्रेशन के थ्रू प्रेजेंट कर देते हैं। सपोज़ ये आपके सामने एक अकाउंट है, सारू अकाउंट। एट द एंड ऑफ द मंथ, फर्स्ट ऑफ ऑल वीक, मैंने बैलेंस किया 510 और दोनों साइड को लिख दिया 510 एंड 510। ओके, ये डेट हो गई मई 31। उसके बाद एट द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट मंथ, मई के बाद आएगा जून 1, टू बैलेंस बी डी 510 एज अ ओपनिंग बैलेंस। यानी जिस मंथ में क्लोज किया उस मंथ के एंड में हमने लिखा बाई बैलेंस बी डी एंड किया, और जिस मंथ को हमने ओपनिंग किया उस मंथ में लिखा टू बैलेंस बी डी। ओके, सो इट इज़ वेरी इजी एंड कॉमन प्रॉब्लम फॉर यू। एंड now we will move to the some of the important theoretical parts of this chapter, that is a procedure to close the various account। यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोजिंग अकाउंट को हम कैसे क्लोज करेंगे और उनका क्या यूटिलिटी होती है, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। प्रोसीजर टू क्लोज द वेरियस अकाउंट, एज ऑलरेडी डिस्कस, द अकाउंट आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लासेज में बताया हुआ है कि दे आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट, दैट इज अ पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट मीन्स ऑल द अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू द person which are already a natural person, artificial person, and representative account. And real account are those account which are related to the assets. It includes the tangible as well as the intangible assets. And nominal accounts means it includes all the incomes and expense account. Okay, so how we will deal such kind of account? Just suppose if we are preparing a personal account like a RAM account, हमने RAM account प्रिपेयर, तो उसको हम कैसे बैलेंस करेंगे। सपोज वी आर प्रिपेयरिंग अ एसेट्स अकाउंट लाइक अ गुडविल अकाउंट, लाइक अ बिल्डिंग अकाउंट, सो हाउ वी विल डील विथ इट, सेम एज इट इज़ इन केस ऑफ नॉमिनल अकाउंट। इफ़ वी आर प्रिपेयरिंग अ रेंट अकाउंट, कमीशन अकाउंट, तो हाउ वी विल डील विथ इट, रेंट अकाउंट है, कमीशन अकाउंट है, सच काइंड ऑफ इनकम, सच काइंड ऑफ अकाउंट, हाउ वी विल डील विथ इट, सो लेट्स वी डिस्कस इट। सो क्लोजिंग ऑफ द पर्सनल अकाउंट, from the balancing of these accounts we can ascertain as how much amount is owing from each individual customer and how much amount is owed to each individual creditor. If a personal account shows a debit balance, it indicates amount owing from him. On the contrary, if personal account shows a credit balance, indicates the amount owing to him. देखिए बेसिकली पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इट मीन्स अगर किसी भी पर्सनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस आता है, इट मीन इट इज़ अ माई एसेट्स। इसका मतलब ये है कि उसने मुझसे पैसा लिया हुआ है, और क्रेडिट बैलेंस आता है, इट मीन्स मेरी उसके ऊपर लाइबिलिटी है। यानी अगर अब किसी पर्टिकुलर पर्सन को हमने ज़्यादा पैसा दे दिया है, वो रिसीव कर रहा है, इट मीन्स वो मेरा क्या बन रहा है, एसेट्स बन रहा है, और मैंने उससे बहुत ज़्यादा ले लिया, गिवर है। अगर कोई बंदा गिवर होता है, हमको देता है, तो इसका मतलब हम उसके क्या है, ऋणी है, हम उसके डेप्ट हैं। और अगर हम किसी को देते हैं तो वो मेरा डेप्ट ही बन जाता है, वो मेरा वो बन जाता है, क्या बोलते हैं उसको, ऋणी बन जाता है। सो
इस फंडे को याद रखना है आपको, इस तरीके को याद रखना है कि पर्सनल अकाउंट का मेन एम होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट किससे कितना पैसा लेना है, किसको कितना पैसा देना है. सो बेसिकली ये पता चलता है विद द हेल्प ऑफ पर्सनल अकाउंट कि इफ़ एनी पर्सनल अकाउंट हैव अ डेबिट बैलेंस, इट मीन्स इट रिप्रेजेंट हाउ मच अमाउंट ओइंग फ्रॉम हिम. And second one is if personal account shows a credit balance, it indicates how much amount owing to him. In case of the total of the debit side in excess of the credit side, the difference between two is inserted on the credit side of the amount in order to make their total equal. The words by balance CD, balance carried for down against amount of difference in the next accounting period is a balance brought down the debit side by writing the words to balance PD. It is the same as जैसे मैंने आपको प्रोसीजर बताया कि कैसे हम बैलेंस करते थे. तो उसमें सारू का अकाउंट था, गोविंद का अकाउंट था, ये दोनों ही पर्सनल अकाउंट के एग्जाम्पल कर ले. तो उनको बैलेंस हम कैसे करेंगे, एज इट इज़ वैसे ही करेंगे. टू बैलेंस CD बैलेंस करके उसे फिर नेक्स्ट ईयर में अगर उसको हमें ट्रांसफ़र करना है, नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफ़र करना है, तो बाई बैलेंस PD को ट्रांसफर कर पाएंगे. डोंट वरी, वी विल सॉल्व वंस अगेन an important practical problem, so don't worry about it. Second is a closing of real account. Real account includes the account of cash in hand and account of all other assets, land and building, furniture and investment. Method of closing of cash account and the accounts of all other assets same of that of personal account. When balance, these will be shows debit balance. ये ध्यान रखना है आपको. देखिए पर्सनल अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, क्योंकि वो मेरी एसेट्स भी हो सकती हैं और लाइबिलिटीज़ भी हो सकते हैं. बट रियल अकाउंट का जनरली जो बैलेंस होता है वो डेबिट आता है. डेबिट मीन्स जनरली वो हम उसको ओन करते हैं. रियल अकाउंट्स इंक्लूड्स अ प्रॉपर्टीज़ अकाउंट. तो प्रॉपर्टीज़ हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती. नेगेटिव बहुत ही 1% चांस होता है, 1% से भी कम का चांस होता है कि वो एसेट्स हमारी नेगेटिव हो जाती है. सो उस पर हमें उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है. रियल अकाउंट को क्लोज करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि सेम एज इट इज़ पर्सनल अकाउंट की तरह बैलेंस करना है. जनरली इसका डेबिट बैलेंस आता है, यानी डेबिट की टोटल ज़्यादा आता है एज़ कम्पेयर टू द क्रेडिट टोटल. डेबिट में टोटल आ गया 60,000, तो क्रेडिट में बाई बैलेंस CD करके उसे ख़त्म कर देते हैं, इन्हें से बैलेंस कर देते हैं. और नेक्स्ट मंथ में या नेक्स्ट ईयर में उसको ट्रांसफर करना है, तो बाई बैलेंस CD से वो ट्रांसफर हो जाएगा टू बैलेंस BD में. ओके, नाउ इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द क्लोजिंग ऑफ नॉमिनल अकाउंट, सो यू नो वेरी वेल nominal account include the accounts relating to the expense and income of the firm. These account do not require balancing. ये बात याद रखिएगा कि nominal account को बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं होती. As the main purpose of opening the nominal account is certain the net profit and losses of the firm. All such income accounts are transferred to the trading and profit and loss account of the firm at the end of the financial period. Okay? और इसकी पूरी डिटेल के लिए आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो चैप्टर है उस पर डिस्कस करना पड़ेगा. बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं, जैसे लाइक परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, मैंने यहाँ बैलेंस करके दिखाया बिकॉज ऑफ आपको कैसे बैलेंस करना है ये सिखाना था. लेकिन बैलेंसिंग का जो ये टॉपिक है ये आपको ये समझा रहा है कि किस अकाउंट का बैलेंस करना चाहिए, किस अकाउंट का नहीं करना चाहिए. जिस अकाउंट का बैलेंस करना चाहिए उसे किस तरह से करना चाहिए, और जिस अकाउंट का बैलेंस नहीं करना है तो नहीं करना है. सो बेसिकली ये फंडा क्लियर रखिए कि बैलेंस कैसे करना है. पर्सनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी आ सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी आ सकता है. रियल अकाउंट का ऑलवेज डेबिट आता है. कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं जहाँ उसका क्रेडिट बैलेंस आता है और उसे पहले कैरी डाउन करते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर के लिए ब्रॉड डाउन कर देते हैं. क्लियर. नॉमिनल अकाउंट का बैलेंस नहीं करना होता है क्योंकि इसको हम लोग इसलिए मेंटेन करते हैं कि हम अपने बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर सकें. और प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, दैट इज़ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. जब वो चैप्टर आएगा तो कैसे हमें इस अकाउंट को क्लोज करना है वो वहाँ समझाया जाएगा. बट प्रेजेंटली आपको ये समझना ज़रूरी है कि क्लोजिंग जब भी हम नॉमिनल अकाउंट को क्लोज करते हैं तो उसे हम बैलेंस नहीं करते, उसे एज इट इज़ वैसे ही छोड़ देते हैं. जैसे अकाउंट्स रिलेटिंग टू गुड्स सच एज परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, स्टॉक अकाउंट आर नॉट बैलेंस्ड. These accounts are closed by transferring them to the trading account at the end of the period. So, I hope कि आज हम लोगों ने जितने भी टॉपिक पढ़े उसमें आपको काफ़ी चीज़ें क्लैरिटी हो गई होंगी. सो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स बी रिवाइज्ड कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक दी वन इलस्ट्रेशन. With the help of this illustration, we first of all we understand how we will prepare the ledger account. First of all, we pass the journal entry and all the account which are already opened in the journal, it will be separately opened in the ledger account. Okay. The second important part, the balancing of the ledger after the preparation of the ledger account. Balancing of the ledger account में हम लोगों ने क्या सीखा कि हमें अपने ledger account को कैसे बैलेंस करना है.
यानी अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तो उसे हम डेबिट बैलेंस बोलेंगे, क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे, और जिस साइड वैल्यू कम होगी उस साइड जाकर डेबिट में कम है तो टू बैलेंस सी डी एंड क्रेडिट में कम है तो बाई बैलेंस सी डी को रिप्रेजेंट करेंगे। और नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफ़र करने के लिए बाई बैलेंस सी डी विल बी कन्वर्टेड इनटू द टू बैलेंस पी डी एंड टू बैलेंस सी डी कन्वर्टेड इनटू द बाई बैलेंस पी डी। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट, किस अकाउंट का बैलेंस करना है और किस अकाउंट का बैलेंस नहीं करना है। पर्सनल अकाउंट का बैलेंस करना है, रियल अकाउंट का बैलेंस करना है। पर्सनल अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी आ सकता है एंड क्रेडिट भी आ सकता है। रियल अकाउंट का बैलेंस जो है जनरली डेबिट बैलेंस आता है इसका। एक्सेप्शनल केस में इसका बैलेंस क्रेडिट आ सकता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में रियल अकाउंट का बैलेंस डेबिट आता है एंड नॉमिनल अकाउंट का बैलेंस आपको नहीं करना है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो we will come to understand the how we will prepare the ledger account with the help of the particular accounting problem। जैसे अगर आपको कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप कैसे लेजर अकाउंट बनाओगे उस पर हम लोग डिस्कस करके। सो आई होप टुडे वी क्लियर ऑल द टॉपिक्स वेरी इजली। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।